کیا آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ صرف میلاد منانے، چراغ کرانے یا درود پڑھنے کا نہیں بلکہ یہ مہینہ جسمانی، روحانی اور گھریلو برکتوں سمیٹنے کا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ افسوس، بہت سے لوگ اس مہینے کا مذہب، رسموں اور رسومات کا مہینہ سمجھ کر گزار دیتے ہیں، مگر انہوں نے یہ خبر نہیں کہ اگر اس مہینے میں صرف 5 خاص چیزیں نہ کھائی جائیں تو نہ صرف پورا سال بیماری، بے درکی، بے سکونی اور ذہنی اضطراب کا شکار بن سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات رزق، صحت اور سکون ایسے چھن جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ لوگوں کی اکثریت شکایت کرتی ہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں، بچوں کی صحت کمزور ہے، دل اداس اور بے چین ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، روزی آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید ہم نے ربیع الاول وہ قدرتی نعمتیں، برکت والے پھل اور سبزیاں ترک کر دی اور جو ہمارے نبی کے زمانے سے سنت رہی؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ سال بھر بیماری آپ کے پیچھے نہ پڑے؟ کیا آپ گوارا کریں گی کہ پورا سال گھر میں جھگڑے، بیماریاں، بے سکونی آپ کا پیچھا کرے؟ اگر نہیں تو کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ربیع الاول کے اس برکت مہینے میں ان 5 چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل نہ کیا تو تمہیں ایسے لگے گا جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی برکت کو دفنا دیا ہو۔ پھر چاہے کتنی ہی تعویذ، کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کرو، جب اصل چیز چھوڑ دی جائے تو نفع کیسے آئے؟ اس مہینے کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرنا اپنی نسل پر خود ظلم کرنے کے متاثر، اور وہ ظلم ایسا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی روح تک کو بے سکون کر دیتا ہے۔ اس لیے ہوش کرو، ابھی وقت ہے، خود کو بچا لو، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسے راز بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے کبھی سنے ہی نہ ہو، جنہیں جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، دل جھک جائے گا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مہینہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس نے کائنات کی تقدیر بدل دی، جس مہینے نے صحرا کو سجدوں کی خوشبو سے مہکا دیا، جس مہینے نے آسمان کی خاموشی کو یا رسول اللہ کے صداؤں سے توڑ دیا اور زمین آسمان رحمتوں کی بارش برسی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ایک لمحے نے پچھلی تمام صدیاں شرمندہ کر دی، کیونکہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک ایسا نور اترا جس نے ظلمت کو چیر کر دنیا کو علم، عدل پر رحم راستہ دکھایا۔ جی ہاں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے کریم نبی محمد مصطفیٰ کی ولادت ابا سعادت ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ دنیا سے پردہ مار اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اس مہینے میں تو نبی اس دنیا میں تشریف لائے جن کے آتے ہی غریبوں کا سہارا مل گیا، یتیموں کو محبت ملی، مظلوموں کو انصاف ملا اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو روشنی نصیب ہوئی۔ وہ نبی جن کے قدموں نے مٹی کو بھی مقدر بنا دیا، جن کے مسکراہٹ نے امت کے دکھ کو درد کی تسلی دی، جن کی دعاؤں نے امت کی بخشش کی راہیں کھول دی۔ وہ نبی جن کا نام آتے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، جن کا ذکر دلوں کو جلا بخشتا ہے اور جن کی ذات ساری کائنات کے لیے رحم بن کر آئی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے میری ولادت کے دن خوشی منائی اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت تیرے ذمے ہے۔ آپ خود سوچو، وہ دن جسے خود نبی رحمت نے خوشی منانے کے لیے ذریعہ قرار دیا ہے، وہ مہینہ کتنا بابرکت ہوگا۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ تو مہینوں کا تاج ہے۔ یہ ان عام سے عام جن میں دلوں پر حقہ کی مہر لگتی ہے، جن راتوں میں آسمانوں سے فرشتے سلام لے کر اترتے ہیں، جن دنوں میں ذکر محمد سے گھروں میں روشنی، رزق میں برکت، دلوں میں سکون اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو صرف عبادت سے نہیں، محبت سے بھی برکت دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی کی طرز کو اپنانے، کی سنتوں کو زندہ کرنے اور آپ کی تعلیمات پر چلنے بہترین موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم صرف سیرت سے نہ سنیں بلکہ اپنے اصل سے بھی انہیں زندہ کریں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مکہ کے اندر سجدہ کرنے والا سچے دل پیدا ہوئے، جس میں کفر کے اندھیروں میں توحید کی شمع روشنی ہوئی، جس مہینے کی ہر یتیم کو سہارا دیا، ہر مظلوم کو آواز دی اور ہر بیوہ کو امید دی۔ آج اگر اس
इस महीने को सिर्फ जुलूसों और नाटों तक महदूद कर दिया तो हम इस महीने की असल रूह को खो बैठेंगे। रब्बुल अव्वल हमें दावत देता है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। क्या हम अपने नबी से मोहब्बत सिर्फ जबान से करते हैं या अमल से भी? क्या हमारे घरों में नबी की सुन्नत जिंदा है? क्या हमने झूठ छोड़ा? क्या हमने ग़ीबत तौबा की? क्या हमने नमाजें वक्त पर शुरू की? क्या हमने दिल को नरम किया? ये महीना हमें जगाने आया है। ये महीना सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि अलमी तब्दील का तकाजा करता है। और प्यारी बहनों, रब्बुल अव्वल के इन मुबारक आयाम में हमें अपने घर में अपनी जिंदगी और अपने दिल को नबी के रंग में रंगने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में नरमी, रहम, सच्चाई, अदल और कुर्बानी को शामिल करें। आपस की लड़ाई, मियाँ बीवी के झगड़े, बहन भाइयों की दुरियां, सास बहू के फितनों के खत्म करें। रब्बुल अव्वल हमें एक दूसरे को माफ करने, दिलों को साफ करने और अल्लाह की तरफ लौटने का पैगाम देता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो और मैं तुम में से सबसे बेहतर हूँ अपने अहल के खाना तुम के लिए। अगर हम सच्चे आशिक हैं, रसूल हैं, तो रब्बुल अव्वल हमारे लिए इंकलाब बनकर आना चाहिए। एक ऐसा इंकलाब जो हमारे अमल, जुबान, दिल और नियत को बदल दे। तो चलो प्यारी बहनों, हम वक्त में जाया किए बगैर बात करते हैं उन 5 चीजों में से पहली चीज के बारे में जिससे रब्बुल अव्वल के बरकत महीने में खाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये ना खाई गई तो फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। बीमारियां आ घेरेंगी, कमजोरियां जिस्म को सिमट जाएंगी और नेमतों के बावजूद बरकत का नौमी निशान मिट जाएगा। दिल बेसुकून रहेगा और जिंदगी से खुशियां की बहारें रुखसत। यह पहली चीज है खजूर। जी हाँ, वही खजूर जो नबियों की खुराक रही, जिसे रोजे इफ्तार किए गए, जिसे जन्नत का फल कहा गया, जिसे मेरे नबी ने अपनी सुन्नत बनाया, जिसकी तासीर ऐसी है कि अगर बीमार खाए तो शिफा पा जाए, अगर कमजोर खाए तो ताकत लौटे, अगर गरीब खाए तो दिल को अमीर हो जाए और अगर मोमिन खाए तो दिल से नूर भर जाए। मेरे नबी का फरमान है, जो शख्स रोजाना 7 अजवा खजूर सुबह के वक्त खाए उस दिन उससे जहर जादू नुकसान नहीं दे सकता। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये कितनी बड़ी बहासारत है? एक छोटा सा फल और इतना बड़ा तहफ्फुज, यही वह खजूर है जिस मेरे नबी ने भरोसा किया, जिससे हमारे नबी ने रोजे खोले, जिस सहाबा करम ने अपनी खुराक का हिस्सा बनाया और जिस पर दुनिया के हर दरवेश, हर आरिफ, हर अल्लाह वाले एतमाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, खजूर में 70 बीमारियों का इलाज है और ये मोमिन की गर्जा है। इस बात को समझने वाला वही हो सकता है जिसने रूहानी गनेजा को दुनियावी फैशन से ज्यादा कीमती जाना हो। लेकिन आज अफसोस, हमने इस मुबारक फल को सिर्फ रमजान को महीना बना दिया है। हमने इस सुन्नत को नहीं समझा, बस एक मीठा लजीज फल जाना। हम महंगे महंगे बिस्कुट, फास्ट फूड और कॉमिल से भरे मशरूबात पर लाखों लुटा देते हैं, मगर खजूर नजरअंदाज करते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं, जब दिल सुकून नहीं रहता, जब जिस्मानी तनवाई जवाब देने लगती है, तो दवा खाने के चक्कर में काटते हैं, जबकि शिफा तो उसी खजूर में थी जिसे हमने नजरअंदाज किया। हमारे मुआशरे की तकल हकीकत यह है कि हम सुन्नत को फैशन समझकर छोड़ चुके हैं। हमने उन गणाजियों को कमतर समझ लिया है जिन पर मेरे नबी ने अपनी जिंदगी गुजारी। आज की नस्ल कहती है खजूर सिर्फ दादा नानी खाते हैं, ये पुराने वक्त की चीज है। हमें एनर्जी ड्रिंक चाहिए, प्रोटीन पॉट्स चाहिए। और नादानों, वो नबी जिसकी एक मुस्कुराहट से अंधेरी रातें रोशन हो जाती थी, वो अगर किसी चीज को जिंदगी का हिस्सा बनाए तो तुम कैसे उसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें अपनी सेहत, अपनी रूह और अपनी बरकतों की फिक्र नहीं? याद रखो, रब्बुल अव्वल का महीना सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि सुन्नतों का अपनाने का महीना है। और खजूर इस महीने की पहली जरूरी गड़िजा है, जिसे अगर अपना लिया तो सारा साल जिस्मानी, रूहानी और माशी बरकतें तुम्हारा पीछा करेंगी, और अगर छोड़ दिया तो तुम सारा साल पछतावे के थप्पड़ खाते रहोगे, क्योंकि तुमने खुद रहमत के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई पर मबनी, हैरान कुन और दिल का दहलाना देने वाली हकीकत सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए और दिल भी कांप जाए। मंजूर कुछ यूं था कि एक कच्चा सा गांव
बारिश के बाद की ताजगी ने हर चीज को धो दिया। पहाड़ों की दरमियां एक छोटा सा रास्ता बन खल्क हुआ है। एक दरवेश की झोपड़ी तरफ जा रहा था। सूरज की पहली किरण पहाड़ के ऊपर से एक झांक रही थी। परिंदे अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए फिजा को मक्का महका रहे थे। सब्जा हर तरफ लहरा रहा था, जैसे फिरात खुद सजदे हो और हवा में एक रूहानी खुशबू तैर रही थी। तभी एक नौजवान जिसके कपड़े बोसीदा थे, आंखों में उदासी और चेहरे पर भूख की परछाई थी, उस झोपड़ी की तरफ आया। झोपड़ी में एक नूरानी चेहरे वाला अल्लाह वाला बैठा था, जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी और आंखों बंद किए जिक्र में मशगूल था, जैसे कायनात से मावरा है वो। नौजवान ने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा जी बीमार हूँ, कमजोर हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि नमाज के लिए खड़ा हो सकूं। मेरे माँ बाप नहीं, दुनिया में कोई सहारा नहीं। लोग कहते हैं मेरा साथ नुसरत है। मैं हर दर पर गया, कोई दवा कोई काम ना आई, कोई दुआ कबूल नहीं हुई। दरपेश आंखें खुली, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फरमाया, बेटा तुमने जिस्म की दवा तो बहुत ढूंढी, मगर रूह की दवा को नजरअंदाज किया। आज रब्बुल अव्वल है। इस महीने में अल्लाह ने दुनिया को तोहफा दिया है, जिसके सदके बीमार शिफा पाते हैं, अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं और भूखे शेर हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने इस महीने में खालिस नियत के साथ सदका किया या सुन्नत मुताबिक खाने पीने का एहतमाम किया, अल्लाह उसके जिस्म को बीमारी से पाक कर देता है। बेटा जाकर थोड़ा सा शहद, खजूर और कलौंजी ले आओ। ये मेरे नबी का पसंदीदा गड़िजा है। इस महीने का इनका इस्तेमाल ना सिर्फ जिस्म की ताकत देता है, बल्कि रूह को भी जिंदगी बख्शता है। नौजवान ने वो चीजें इस्तेमाल की, नेमत ही की जिक्र शुरू किया और चंद दिनों में ऐसा बदला कि पूरा गांव हैरान रह गया। चेहरे पर नूर, जिस्म में ताकत, जुबान पर हिकमत और दिल में सुकून। वही लोग जो उससे मनहूस कहते थे, अब उसे दुआएं कराते थे। प्यारी बहनों, सबक ये है कि कभी कभी जिस्मानी कमजोरी का इलाज दवा से नहीं, रूहानी समझ और सुन्नत के अमल से होता है। और रब्बुल अव्वल वो महीना है जिसमें अगर हम नबी की सुन्नतों के मुताबिक गड़ जाए, इस्तेमाल करें, तो सिर्फ बीमारी नहीं किस्मत तक बदल जाती है। लेकिन अफसोस, आज हम मगरिबी निजाम गिजा के पीछे इतने अंधे हो गए हैं कि नबी की गजा पुरानी बातें समझकर भूल चुके हैं। यही भी हमारी जवाल की असल वजह है। तो प्यारी बहनों, अब वक्त आ चुका है दूसरी ऐसी चीज जानने का, जिसे रब्बुल अव्वल बाबरकत महीने में खाने या इस्तेमाल करना सिर्फ सुन्नत नहीं, बल्कि अकल वालों के लिए नेमत से कम नहीं। ये वो चीज है जिसे अरब के रेगजारों में सहाबा इकराम भी हर अहम मौके पर इस्तेमाल करते थे। ये वह चीज है जिसका जिक्र पुराने दौर से बुजुर्गों को रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे होता जैसे पानी का होना जरूरी है। और आज के दौर के इंसानों ने इसे या तो फैशन की भेंट चढ़ा दिया या फिर मगरिबी तिब रिवायत से इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और वो है कलौंजी। जी हाँ, वही रसायन है ना जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया कि कलौंजी मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। ये अल्फाज सुनकर अगर किसी को रूह ना कांपे तो वो सख्त सेहत की नेमत को कभी समझा ही नहीं होगा। प्यारी बहनों, कलौंजी कोई आम दाना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक सच्चा खजाना है, जिसे हमारे नबी ने खुद इस्तेमाल किया, अपने सहाबा को इसकी तरगीब दी और उम्मत को कयामत तक के लिए एक लाजवाब इलाज दे दिया। मगर अफसोस, आज के मुआशरे में जब भी किसी के सर में दर्द या पेट में गैस हो, असाबी कमजोरी हो, तो फौरन केमिकल से भरे कैप्सूल खाए जाते हैं, मगर कलौंजी का नाम तक नहीं आता। तो कहते हैं कि ये तो पुरानी चीज है। अजीब बात है ना कि जो चीज नबी के घर में रोजाना इस्तेमाल होती थी, आज वो हमारी दादियों के संदूक तक महदूद हो गई है। क्या हम वाकई बेहाल हो गए हैं? सुन्नत को फरामोश करके साइंस के धोखे में आ गए हैं। अगर आप इस रब्बुल अव्वल महीने में शुरू कर दी, यानी इसी महीने में नियत कर लें कि मैं अपनी तर्ज जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक बदलूंगी, तो यकीन करें आपकी जिंदगी से बीमारियां, कमजोरियां और अजीब उलझने ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे सूरज के आगे अंधेरे का मजाल नहीं होती। कलौंजी का गर्म पानी में शामिल करके पानी से शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से या फिर सादा चबाने से जो फायदे हासिल होते हैं, वह न सिर्फ जिस्म को तनवाई देते हैं बल्कि रूह को भी ताजगी अता करते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि कलौंजी वो चीज है जो न सिर्फ जिस्म का मेल उतारती है बल्कि रूह
की उलझने भी कम करती है। मगर आज के दौर का इंसान कहता है कलौंजी से क्या फर्क पड़ता है, और यही जुमला उसी की बर्बादी पहली पहली ईंट बन जाती है। तो ए मेरी प्यारी बहनों, अगर चाहती हो कि तुम्हारा जिस्म सेहतमंद हो, तुम्हारा जहन तेज हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर हो और तुम्हारी जिंदगी से बीमारियों का खात्मा हो जाए, तो रब्बुल अव्वल के इस महीने में कलौंजी का अपनी जिंदगी में दाखिल करें। यहाँ वो अमल भी है जिस पर सिर्फ फायदा ही फायदा है। और याद रखो, ये जो सुन्नत के करीब आता है वो कभी महरूम नहीं रहता। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं रब्बुल अव्वल के महीने में तीसरी वो चीज कौन सी है जो खाना बहुत जरूरी है, और वो है शहद। शहद जिसे तुम सिर्फ मीठा समझकर नजरअंदाज कर देती हो, दरअसल जमीन पर उतारा गया वह आसमानी नुस्खा है जो न सिर्फ तुम्हारे जिस्म को शिफा देता है बल्कि तुम्हारी रूह को भी पाकीज़गी अता करता है। कुरान ने इसका जिक्र वाज़े अंदाज में किया है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, यानी शहद दवा भी है, गडीजा भी है, इबादत का जरिया भी है और नेकी का सबक भी। रब्बुल अव्वल वो महीना है जिसमें मेरे नबी तशरीफ लाए और नबी की सुन्नत पर चलना ही असल कामयाबी है। मेरे नबी को शहद बेहद पसंद था और वो इसे निहार मुंह इस्तेमाल किया करते थे। शहद सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं देता बल्कि यह दिल की जख्ती को भी नरम करता है, मादे की जलन को खत्म करता है, आंखों की बेनाई को तेज करता है, जिगर को ताकत देता है, दिमाग को सुकून देता है और सबसे बढ़कर दिल की धड़कन को मुजुम करता है। हैरत की बात ये है कि साइंस आज इस बात को मान चुकी है कि शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुशियत मौजूद हैं। यानी कि ये एक ऐसा मुकम्मल नेचुरल फॉर्मूला है जिसे अल्लाह ने शहद की मक्खी मधुमक्खी के जरिए हम तक पहुंचाया है। सिर्फ एक चम्मच शहद तुम्हारे जिस्म को वो तनवाई देता है जो किसी पूरे खाने से भी नहीं मिलती। अगर शहद को नियम गर्म पानी में मिलाकर निहार मुंह पिया जाए तो ये तुम्हारे जिस्म में मौजूद तमाम जहरीले मादों को बाहर निकाल देता है, तुम्हारे वजन को तवाज़ुन में रखता है, तुम्हारे चेहरे को निखारता है, तुम्हारी हड्डियों को ताकत देता है और तुम्हारे अंदर की एक रूहानी ताजगी पैदा करता है। शहद वो वाहिद चीज है जो कभी खराब नहीं होती, हजारों साल पुराना शहद महफूज रहता है और यही इसकी रूहानी ताकत का सबूत है कि जिस चीज को वक्त खत्म नहीं कर सकता वो चीज तुम्हें कैसे खत्म होने देगी। इस महीने में शहद को अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाओ, क्योंकि ये मेरे नबी की सीरत का पैगाम यही है। जिस्म को पाक करो, दिल को साफ करो और रूह को बुलंद करो। और अगर तुम अपने बच्चों को सुबह नाश्ते से पहले शहद देना शुरू करो तो वह न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होंगे बल्कि जहनी तौर पर भी तेज और अखलाकी तौर पर भी नरम दिल होंगे। तो प्यारी बहनों, इस रब्बुल अव्वल महीने में शहद का सिर्फ एक मीठा मादा ना समझो, यह तुम्हारे जिस्म की ताकत, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत और तुम्हारे रिज़्क़ की कुसादगी का जरिया बन सकता है। क्योंकि मेरे नबी की सुन्नतों में सिर्फ जहरी बरकत नहीं बल्कि बेनाती सिफा भी छुपी हुई है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जो वह चौथी चीज है आबे जमजम, दुनिया का सबसे पाकीज़ा, बाबरकत और मुकद्दस तरीन पानी, जो ना सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि रूह को भी ताजगी अता करता है। आबे जमजम वो पानी है जिसके एक एक कतरे में सिफा, सुकून, रोशनी और रब की खास रहमत छुपी हुई है। ये वह पानी है जो शादियों पहले मेरे नबी के कदमों की सरजमी मक्का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत हजार की तड़प और हजरत इस्लाम की प्यास के जवाब में अल्लाह ने जमीन के सीने से जारी फरमाया, जो कयामत तक जारी रखा। प्यारी बहनों, आब ए जमजम सिर्फ पानी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा एक इलाही मुआवजा है जिसे अगर कोई दिल से पिए और नियत करे तो वो नियत पूरी होती है, वो मकसद आसान हो जाता है और वो दुआ अर्श तक पहुंचती है। आज के इस गुनाहों से आलूदा मुआशरे में जहाँ रूहानी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जहाँ दिल सुकून को तरस रहा है, जहाँ चेहरे पर बेनूर हो रहे हैं, वहाँ आबे जमजम एक ऐसा नूर है जिसे अगर मुसल्लत बाअदब बिस्मिल्लाह के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तहक़ीक़ से साबित हो चुका है आबे जमजम में वो मादियानत, ताकत और हजारत मौजूद जो दुनिया के किसी भी पानी में नहीं।
साइंटिफिक लिहाज से इसमें इतनी तनवाई पाई है गई है, मिराज मरीज के जिस्मानी कमजोर को खत्म कर दे और रूहानी लिहाज से इसमें इतनी तासीर की जिंदा रोते हुए दिल के साथ पी ले तो अल्लाह खुद उसके दुख सुनता है। मेरे नबी ने फरमाया, आबे जमजम उस मकसद के लिए जिसके लिए इसे पिया जाए, यानी अगर आप इसे शिफा के लिए पियो तो शिफा मिलेगी, अगर इल्म के लिए पियो तो इल्म मिलेगा, अगर रिज्क के लिए पियो तो रिज्क इजाफा होगा और दिल के सुकून के लिए पियो तो दिल में सुकून भर जाएगा। प्यारी बहनों, कितने लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, दवाइयों के मोहताज बन जाते हैं, मगर एक बार भी आबे जमजम को दिल से नहीं पीते। याद रखो, जो शख्स आबे जमजम को इस यकीन से पीता है कि अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह जरूर शिफा देता है, क्योंकि जमजम वो पानी है जिस पर फरिश्ते गवाह हैं और नबियों की दुआएं शामिल है। आज जरूरत इस बात की है कि हम रब्बुल अव्वल के इस अजीम महीने में आबे जमजम को महज तबर्रुक के तौर न मिले, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। जब भी पियो बिस्मिल्लाह कहो, आंखें बंद करो और वो दुआ मांगो जिसे तुम बरसों से दिल में दबाए बैठे हो। यहाँ पानी सिर्फ जिस्म नहीं, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा मुस्तकबिल भी बदल सकता है। जमजम पानी इबादत भी है और शिफा भी। प्यारी बहनों, जब दुनिया की दुआएं बेअसर हो जाएं, तब जमजम के एक घूंट से शिफा मांग कर देखो, अल्लाह की रहमत तुम पर ऐसे बरसेगी जैसे बादल बरस पड़े हो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में जिसे रब्बुल अव्वल महीने में खाना बहुत जरूरी है, और वो है जैतून। जी हाँ, वही जैतून जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है। इतनी में जैतून, क्या अभी सोचा कि अल्लाह कोई भी चीज मामूली तौर पर जिक्र नहीं करता। जब वो जैतून का जिक्र करता है तो वह इसकी कदर, आफियत और रूहानी बरकतों का ऐलान होता है। जैतून सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि यह एक नियामत है जिस्म का दिल और ईमान ताकत देती है। खासतौर पर रब्बुल अव्वल जैसे मुकद्दस महीने में जब रहमतों का नुज़ुल होता है और दिलों में नबी से मोहब्बत का चिराग रोशन होता है, जैतून को खाने वाला शख्स सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर नहीं बनता, बल्कि रूहानी तौर पर भी मजबूत होता है। मेरे नबी ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे जिस्म पर लगाओ, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से अब जरा सोचो जिस महीने में नबी पाक की विलादत हुई। अगर इस महीने में तुम वो चीज खाओ जिसे नबी खुद अपनी जुबान से मुबारक करार दिया हो, तो तुम्हारे जिस्म से बीमारी नहीं भागेंगी? क्या तुम्हारे घर से शिफा और नूर नहीं उतरेगा? क्या तुम्हारी औलाद नबी अखलाक जैसी महरूम से रह सकती है? प्यारी बहनों, आज के दौर में लोग जैतून को सिर्फ एक सादी सी खुराक समझकर छोड़ चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही वो फल है जिसमें रूहानी हिफाजत, दिल की नरमी, दिमाग की रोशनी और दिल के सुकून का राज छुपा है। तुम्हारे दिल की बेचैनी, तुम्हारी नींद की खराबी, तुम्हारे शोहर की बेरुखी, बच्चों की जिद, घर की बेकदरी, इन सब का एक हल हो सकता है, और वो है जैतून को अपनी गदीजा का हिस्सा बनाना। खास तौर पर रब्बुल अव्वल के महीने में जब हर नेकी का अज्र 70,000 गुना हो जाता है। याद रखो, जैतून सिर्फ दवा नहीं है, ये बरकत है। ये वो फल है जिसमें जमीन की सबसे मुकद्दस वादियों में उगाया गया है, जिसे फरिश्ते की खुराक कहा जाता है, जिसे नबियों की शिफा पाई, जिसे जन्नत में भी शामिल किया गया है। अगर तुमने आज से जैतून को रब्बुल अव्वल महीने में अपनी ग़िज़ा बना लिया तो यकीन करो तुम्हारे घर में रोशनी, तुम्हारे जिस्म में ताकत और तुम्हारे ईमान में इस्तिकामत आ जाएगी। प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको घरों के बेसुकूनी और बेकदरी को और हर बीमारी और हर मुसीबत और दूर फरमा दे, आपके दिलों को सुकून दे, जुबानों को नरमी अता करे और आपके घरों में मोहब्बत, रहमत और खुशियां नाजिल फरमाए, आपकी शोहरों के रिज्क में बरकत दे, आपके बच्चों को नेक बनाए और आपके तीनों को ईमान से मुनव्वर करे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो, आपके दिल को झंझोड़ा हो, तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसी वीडियो को दिल को छू लेने वाले बयानों को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।